حضرت علی نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو جائے اس سے اتنی ہی نفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسرے کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جو دکھ دے اسے تعلق نہ رکھو، اور جس سے تعلق نہ رکھو اس کو دکھ نہ دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ فرمان حضرت علی، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب آپ مانگیں گے تب ہی آپ کو ملے گا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔
खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हक बात की पहली निशानी है उसकी मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कतान हक नहीं। सैयदना अली ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज़्ज़त कड़वी मगर तासीर मीठी होती है। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखना हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो। हज़रत अली ने फरमाया, जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाए उससे उतनी ही नफरत हो सकती है, क्योंकि शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब भूल सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज हैं। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया, जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरे के लिए सोचे वो इंसान है। लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ करेगा। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। तुम्हारी औरतों में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने किरदार में पाक दामन और अपने शौहर को हद दर्जा पसंद करने वाली हो। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। जो दुख दे उसे ताल्लुक़ ना रखो, और जिससे ताल्लुक़ ना रखो उसको दुख ना दो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। अगर कोई शख्स दोस्ती का अहल ना मिले तब भी किसी नाअहल से दोस्ती मत कर। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गरूर नेकी को तबाह कर देता है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी ज़हर कर दो। फरमान हज़रत अली, रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। रिज़्क़ सखावत में पोशीदा है, लोग इसको मेहनत में तलाश करते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत समझना कि कितना बेवकूफ़ था।
बल्कि ये सोचना कि उसका आप पर एतबार कितना था। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उन्हीं के सामने है जिस पर खुद से ज़्यादा भरोसा हो। वुज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुम में मौजूद है। एक आदमी ने हज़रत अली से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से ही लिखी होती है तो हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। हज़रत अली ने फरमाया, हो सकता है आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि जब आप मांगेंगे तब ही आपको मिलेगा। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखना हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हक बात की पहली निशानी है उसकी मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कतान हक नहीं। सैयदना अली ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इखलाक एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज़्ज़त कड़वी मगर तासीर मीठी होती है। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखना हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो।